نہیں نہیں، شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے. ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس. چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کینچاتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں. نہیں ہوئے انشاءاللہ، نہیں کوئی نہیں ہے. پروجیکٹ سے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا، نہ ہی بی بی نے لیا ہے. آج اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی، جس میں بی بی کا نہ نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ میں نام ہے، وہ بھی ایک بوگس اور بیس لیس کیس تھا جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں، چونکہ یہ میلیشس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے، سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نیب پہ خود کیس کروں گا، اور وہ کیس اس میلیشس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے. آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہو، اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا. خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے. ہم اس کا اعادہ کرتے، خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو میجارٹی ملی تھی آن پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، بائی الیکشن کروائے گئے اور میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرایا گیا. ہم وارن کر رہے ہیں، ہم استدعا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روکا جائے. الیکشن کمیشن جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ آف ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت کو شکست میں بدلنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے. اس سے حالات خراب ہوں گے، اس سے پارلیمان کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گی. ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمان کا حصہ ہے، اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں بند کر لے، ہمارے کینڈیڈیٹ کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ آج پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ. سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسٹپون کرائے گئے. ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن نہ کرائیں، آپ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن نہ کرائیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے؟ اب جب کہ کے پی کے ریپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہوں، جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہوں، تب تک سینٹ کی الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن نہ ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینٹ میں
हमारा अपोजिशन लीडर अली ज़फ़र साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन बपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक KPK के सेनेटर वापस ना आए हों। कल भी एक अवामी इज्तिमा में ये कहा कि हमारी सफ़ों में कुछ मुनाफिकीन और साफ मौजूद है। आज खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से रखते हैं और उसके बाद ऐसे बयान जारी करते हैं, हमेशा बीबी के गलत बयान जारी किया जाता है। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं आपकी सफ़ों में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबत में हैं और आप ही की पार्टी के खिलाफ बयान जारी करा रहे हैं? देखिए, वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। देखो, हमने उसका जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने फ़िज़िकल मुआयना किया। फ़िज़िकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और सब ये बताइएगा, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और वकला की जानिब से कबल इस वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइए कि उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके ज़रिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बराह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए, इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी हैं वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, और जिसकी कस्टडी में वो हैं, तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकलात हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपने देखें कि वो सारे FC वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी। और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। गौर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि जो सियासी कमेटी तश्कील हुई है जिसमें 14 लोग शामिल हैं, जी, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात को। जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटी बनाई गई थी, जो फोकल पर्सनस की कमेटी, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगाने का इल्ज़ाम? नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात करी हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारे सूबों के उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि 1-2 बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखते हैं और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं।
जो भी होगा, लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए, तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे, तो क्या अगला नंबर किसका है? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी केंचतानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह, सनम जावेद का नाम नहीं कोई नहीं है।